अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंसीडर टू सोर्सेज ऑफ लाइट emitting waves of amplitude A and B ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅਤੇ ਵੇਵਸ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਮੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ b ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, if there is no interference between the light waves, then intensity of light at any point on the screen, ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ I equal to I1 plus I2, so I equal to A square plus B square। ਜੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਾਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਮੈਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲਸ B ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਸਤੇ A ਮਾਈਨਸ B ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲਿਆ, ਆਈ ਮੈਕਸ ਪਲਸ ਆਈ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ A ਪਲਸ B ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ A ਮਾਈਨਸ B ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 2। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, A ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ B ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ 2AB ਪਲਸ A ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ B ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2AB। 2AB ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2A ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ 2B ਸਕੇਅਰ ਬਾਏ 2। 2 ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ 'ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ I ਐਵਰੇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ B ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, the energy which disappears at the regions of destructive interference appears at the regions of constructive interference। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਬਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਕ ਹੋਏਗੀ ਫਰਿੰਜ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਇਜ਼ ਓਬੇਡ ਇਨ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਬੀ destroyed and it is conserved in the interference phenomena। next topic है theory of interference of light। suppose A and B are two fine slits separated by small distance d। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲ A ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮੋਲ d ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਿਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ MN, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ AEOC ਐਂਡ BF ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ C ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ X। point C on the screen is at equal distance from A and B। ਹੁਣ A and B point ਤੇ ਤੋਂ point C equal distance ਤੇ ਹੈ। equal distance ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ C point ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਬਣੇਗਾ। path difference between the two waves reaching point C is 0, so intensity at this point will be maximum ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ X।
फ्रॉम पॉइंट सी। हुण इस स्क्रीन के उपर एक होर पॉइंट पी कंसीडर किया फ्रॉम पॉइंट सी तो जिसका डिस्टेंस कितना एक्स। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ वेव्स ने वो ए पॉइंट तो भी जा रही ने तो बी पॉइंट तो भी जा रही ने तो उन्होंने विच कुछ पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना बिटवीन द वेव्स रीचिंग द पॉइंट पी बी पी माइनस ए पी। तुसीं देख लो कि एक जिहड़ी वेव है वो स्लिट ए दे विचों जा रही है पास होकर पॉइंट पी ते एक बी दे विच जा रही है। दोवां दे विच कुछ पाथ डिफरेंस है। ठीक वो पाथ डिफरेंस कितना बी पी माइनस ए पी। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੀ ਪੀ ਐਫ। ਬੀ ਪੀ ਐਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਸੋ ਬੀ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪੀ ਐਫ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲਗਾਇਆ ਹਾਫ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀ ਪੀ ਐਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਸੋ ਬੀ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ बी एफ स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर। बी एफ किस दे इक्वल है कैपिटल डी दे कैपिटल डी स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर। पी एफ की वैल्यू की है पी सी प्लस सी एफ। हुण पी सी कितना साडे कोल स्मॉल एक्स तो सी एफ की वैल्यू की होएगी इट विल बी स्मॉल डी बाई टू क्योंकि तुसीं देख लो कि साढ़े कोल ए बी कितना सी ए बी दे विच डिस्टेंस कितना डी ओ सेंटर है तो ए ओ भी डी बाई टू होएगा तो ओ बी भी डी बाई टू होगा। ओ बी सी एफ के बराबर है। ठीक सो सी एफ भी कितना होएगा स्मॉल डी बाई टू। सो फाइनली साढ़े कोल पी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू। ਅਸੀਂ इत्थे वैल्यूज़ पुट कीतियां। नैक्सट केस दे विच असीं बाइनोमीअल थ्योरम लगाई है एक्सपैंड किया बाइनोमीअली हाफ जिहड़ा है अगे आ गया तो हायर ऑर्डर टर्म्स नूं असीं इत्थे इग्नोर किया। साडे कोल इक्वेशन आ गई बी पी इक्वल टू कैपिटल डी 1 प्लस हाफ एक्स प्लस डी बाई टू होल स्केयर बाय डी स्केयर। इस तरह असीं नैक्सट ट्राइंगल लिया ए पी ई ट्राइंगल ए पी स्केयर इक्वल टू ए ई स्केयर प्लस पी ई स्केयर। हुण ए ई का सानू पता है कैपिटल डी है पी ई कितना होएगा क्योंकि पी सी कितना एक्स ए ओ कितना डी बाई टू ए ओ दे पैरलल की है ई सी सो ई सी भी कितना स्मॉल डी बाई टू पी सी एक्स है साढ़े कोल पी ई कितना आ जाएगा इट विल बी एक्स माइनस डी बाई टू। यही वैल्यू इतने पुट की है ए पी इक्वल टू डी स्केयर प्लस एक्स माइनस डी होल स्केयर एंड ब्रैकेट क्लोज इस पूरी टर्म का की है रूट। अगेन इतों असीं डी कॉमन लिया तो बाइनोमीअली असीं इसनूं एक्सपैंड किया। हुण साडे कोल पहली इक्वेशन की सी असीं पाथ डिफरेंस कितना लिया सी बी पी माइनस ए पी। सब तो पहली इक्वेशन असीं इक्वेशन 1 पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग पॉइंट पी इक्वल टू बी पी माइनस ए पी। हुण इत्थे साडे कोल बी पी एंड ए पी दीयां जिहड़ियां वैल्यूज़ आईयां ने असीं उन्हां नूं पुट किया सिंपलीफाई कर रहे हैं 2d स्क्वेयर असी आउटसाइड लै रहे हैं ब्रैकेट तो 1 दे नाल 1 कैंसल आउट हो रहा है साढ़े कोल टर्म्स बच रही ने एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वेयर। इत्थे इन्हों ए स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूले के नाल असी ब्रैकेट्स नूं ओपन किया साढ़े कोल टर्म आ रही है 1 बाई 2d ब्रैकेट 2xd 2 नाल अगेन 2 कैंसल आउट सो पाथ डिफरेंस कितना आ गया स्मॉल एक्स स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक नैक्सट आ जाता है फॉर मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंजिज वास्ते हम असीं कैलकुलेशनस करन लगे हाँ। पाथ डिफरेंस कितना हुंदा ब्राइट फ्रिंजिज वास्ते असीं देख के आए एन लैम्डा। ठीक पर इक्वेशन 2 तो साढ़े कोल कितना आ रहा है स्मॉल एक्स डी बाय कैपिटल डी। दोवां नूं इक्वेट किया इक्वेट करन तो बाद साढ़े कोल स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आई है एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। सो इत्थे साढ़े कोल एन की है इंटीजर्स है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो जे असी इत्थे वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन के हुणे जिहड़े आपां इंटीजर्स लेने जे इन्हां दी वैल्यूज़ पुट करके देखिए
पोजीशंस देखिए कि जिहड़े मैक्सिमास ने कित्थे कित्थे बनणगे। सो x0 एक तो साडे कोल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ गई, जदों x1 तो n कितना पुट किया 1, सो कितना होएगा पाथ डिफरेंस लैमडा d बाय डी। सैकेंड वास्ते पोजीशन की आ रही है 2 लैमडा d बाय डी एंड सो ऑन फॉर nth फ्रिंज n लैमडा कैपिटल d बाय डी। नैक्सट है कि फॉर मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंजिज पाथ डिफरेंस कितना आएगा, कितना है साडे कोल पाथ डिफरेंस इक्वेशन 2 तो x स्मॉल d बाय डी। ऑलसो असी प्रूव किया होया पिछले आर्टिकल्स विच कितना पाथ डिफरेंस 2n+1 लैमडा बाय 2। अगेन इत्थे जिहड़ियां n दी वैल्यूज़ पुट कीतियां। सो पहला डार्क फ्रिंज साडे कोल की पोजीशन है लैमडा d बाय 2d। नैक्सट x1 वास नैक्सट डार्क फ्रिंज 3 लैमडा d बाय डी बाय 2d एंड सो ऑन फॉर nth डार्क फ्रिंज साडे कोल कितना आएगा xn इक्वल टू 2n+1 लैमडा d बाय 2d। नैक्सट असी कैलकुलेट करनी है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की होंगी है, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द 2 कंजैक्टिव ब्राइट फ्रिंजिज या फिर 2 कंजैक्टिव डार्क फ्रिंज। सब तो पहला आप ब्राइट फ्रिंजिज वास्ते देखते हैं फ्रिंज विड्थ xn माइनस xn माइनस 1। xn असी देखिया n लैमडा d बाय डी। जदों असी n-1 वास्ते देखना तो असी n नूं की पुट करांगे n-1। कैलकुलेशनस कीतियां साडे कोल कितनी आ रही है फ्रिंज विड्थ लैमडा d बाय डी एंड दिस इज़ इक्वल टू द विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज। जे असी देखनी है फ्रिंज विड्थ बिटवीन द 2 कंजैक्टिव डार्क फ्रिंजिज, साडे कोल 2 डार्क फ्रिंजिज ने, ठीक है, उन्हां दे विच कितनी स्पेस है वो असी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कितनी आएगी असी कैलकुलेट की हुई है ना xn फॉर द डार्क फ्रिंज 2n+1 लैमडा d बाय 2d। एक बार हुण असी xn-1 वास्ते भी लिखांगे वैल्यू। सो xn डैश माइनस xn-1 डैश इत्थे 2n+1 लैमडा d बाय 2d माइनस नैक्सट जिहड़ा आपां स्टैप लिखिया तो n नूं कितना पुट किया हुण आपां n-1। कैलकुलेशनस कीतियां तो यह जिहड़ी स्पेस है साडे कोल जिहड़ी ये विड्थ है ये स्पेस किस दे बराबर आई है लैमडा d बाय डी। तो लैमडा d बाय डी किस दे इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द विड्थ ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज। सो असी इन्हां दो इक्वेशनस तो असी की कनक्लूड कर रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट दे विच असी की देखिया कि जिहड़ी ब्राइट फ्रिंज है तो डार्क फ्रिंज है दोवें की ने दे आर ऑफ सेम विड्थ ते जिसनूं असी बीटा दे नाल डिनोट करते हैं एंड बीटा इक्वल टू लैमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी।